नमस्कार, मैं सोमेश्वर आप सभी का दीपावली की अवसर पर जो हम लोग उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, my name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to today's session, 100th session of Yoga Vasishtha. We are also celebrating Diwali, so wish you all very, very happy, joyful, prosperous Diwali. Let this light of knowledge dawn in your life and remove all the ignorance, and which leads you to attain that mukti, that moksha, that nirvana, that freedom and liberation which one is looking for in their life. So to continue this journey of Yoga Vasishtha, today we are on 100th session. Today, actually, it's not just 100th session, it's a 100th day. We have been conducting this session in the morning and evening. So actually, we have been conducting this session from the last 6 months. So almost around 300 sessions of Yoga Vasishtha have been conducted till now. So this is our 100th session of season 2. So today we will see that how this Yoga Vasishtha have brought transformation into people's life. आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से योग वशिष्ठ ने कई लोगों की जीवन में बदलाव यहाँ पे लाया है. And probably that could be your trigger point if you are listening to this video. First time यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यह शायद आपकी जीवन की योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से शुरुआत, इन लोगों के अनुभव से आपकी शुरुआत जरूर हो सकती है, और हमारी यह प्रार्थना भी रहेगी कि आपके जीवन में ऐसा ही हो. सो जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं योग वशिष्ठ, वी ऑल टॉक अबाउट हियर योग वशिष्ठ. व्हाट इज इट दैट योग वशिष्ठ? यह योग वशिष्ठ क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पे जान लेते हैं, एंड देन फिर हम लोगों के अनुभव इसके बारे में सुनेंगे. तो योग वशिष्ठ जो सुबोध योग वशिष्ठ नामक एक किताब है. I just introduce that book to you that it can help if you are wanting to go ahead and pursue your journey. So this is the book Subodh Yoga Vasishtha, written by Suman Mahadevkar ji. And there is another book here which is by Swami Venkateshananda, The Supreme Yoga. Now this the book is in English. This is 365 pages version. There is a bigger version of this book also available. So there are a couple of these. There is also Maharamayan, the book in Hindi. That is also the Marathi, Hindi, English, multiple languages. These books are available. You can always get in touch with us. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, and we will be happy to help you. हम लोग जरूर आपको इसमें books पाने में आपकी मदद करेंगे. तो यह जो किताब है, यह जो ग्रंथ है, यह जो योग सुबोध योग वाशिष्ठ जो है, यह योग वाशिष्ठ है क्या? What is this योग वाशिष्ठ is all about? So it's a dialogue between Prabhu Ramchandra ji and his guru Vasishtha Muni. And as this is one of the form of a yoga in the form of a knowledge, no, it's called as Yoga Vasishtha, the yoga which is taught by Vasishtha Muni. So Yoga Vasishtha. So this is the background of this. यदि हम लोग योग वशिष्ठ के बैकग्राउंड के बारे में देखें तो यह जो ग्रंथ है, यह प्रभु रामचंद्र जी और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि, इनके बीच का जो संवाद है. यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते हैं और वशिष्ठ मुनि उनके उत्तर देते रहते हैं, और उनके जो संवाद यहाँ पे होता है, जो कहानियों के माध्यम से योग अपने वशिष्ठ मुनि जो है प्रभु रामचंद्र जी को यह योग, ज्ञान का यह योग यहाँ पे सुनाते, यही योग वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध है. So let us see the background of this and what is it that one can really get to learn and hear in this Yoga Vasishtha. So this all story starts with a sage called Sutishna. He gets in touch with Agastya Muni and he asks questions that what is more important in our life? Is it the wealth that is important, or is it the knowledge that is important?
So here Agastya Muni tells him that both are important, just like the bird's wings are there. Without just with one wing, one cannot fly. Both your work, your routine, your karma is also important. At the same time, your knowledge is also important. Now to understand this concept, he tells him the more stories of Agnivesha and his son, where the son asks Agnivesha that in Shastras at one point of time, it is being said that your karma kanda, your karma is important. And on another point of time, it says that if you do not drop your karma, you will not be able to get mukti and moksha. Then he gets into confusion. So now all this story continues, and it brings it up to the Arishtanemi. Arishtanemi is the one who is doing all his sadhana, his practices to attain the nirvana, to attain the mukshi. And he also gets an offer from Indra to join him and experience the Swarga Sukha, the heaven. But he even denied that I am looking for something permanent in my life. And that is where, when he denies that, he's been asked to go and meet Rishi Valmiki. So Rishi Valmiki is there and his son Bharadwaja is there. Rishi Valmiki has already written the Ramayana. And that Ramayana was presented to Brahmadeva by Bharadwaja. Brahmadeva liked him and asked him that in this Ramayana, what is the Ramayana, Ram, you have depicted here. He has been shown here as a Maryada Purushottam. We all know Prabhu Ramchandra Ji is called as Maryada Purushottam. How he has attained that Maryada Purushottam, how he has attained that title, how he has exalted in his life, no, performing all his action to its highest possible potential, no, that knowledge also you give to everybody. You write a book about it. No? So with that blessings from the Brahmadev, Rishi Valmiki writes this book, or it's called also Uttar Ramayana, after Ramayana. So Uttar Ramayana, the next thing after Ramayana is Maharamayana or Uttar Ramayana, or also it's very famous as Yoga Vasishtha here. So it is that knowledge. No, it is that knowledge, the dialogue that happens between Rama and Vasishtha Muni. So the story continues that when Rama is just a 16-year-old, he happens to go on a pilgrimage. And that is where once after coming from the pilgrimage, he gets into Vairagya. So that is the chapter number 1, which will see that what is dispassion, what is Vairagya. प्रभु रामचंद्र जी जब अपने भ्रमण करके लौट के आते हैं, तो उनकी जीवन में जो वैराग्य की स्थिति आती है, वही चैप्टर नंबर 1 में हमें देखने को मिलता है ना. ज्ञान वशिष्ठ मुनि देते हैं, वह चालू होता है चैप्टर नंबर 2 से. तो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, तो हम लोग जब मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जीवन में कैसे बने, इसकी ओर अग्रसर होते हैं, तो वो कैसे करे, वो सॉल्यूशन शुरू होता है चैप्टर नंबर 2 से. यहाँ पे पुरुषार्थ की बात आती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में गुरुदेव करते हैं कि जो आपकी ड्यूटीज है वो आपको परफॉर्म करना जरूरी होता है, वो आपका धर्म कहलाता है. उसको प्राप्त करने के लिए जो मीन्स आपको लगते हैं उसको आप अर्थ कहते हैं. और धर्म, अर्थ, काम, और आपके जीवन में जो आपकी जो अपेक्षाएं रहती है, छोटी छोटी अपेक्षा, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, टीम बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, यह जो आपकी कामनाएं रहती है, इन कामनाओं के साथ यदि आप कुछ बड़ा उसके साथ एसोसिएट कर दे, तो बोलते यह पूरा यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है आपकी वह कामना को पूरा करने के लिए. मैं IAS ऑफिसर बनना तो चाहता हूँ, कलेक्टर बनना तो चाहता हूँ, IIT में पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिले, इसलिए नहीं, इसके साथ साथ ये भी मिले, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं लोक कल्याण में अपने उस नॉलेज को, उस स्किल्स को अप्लाई करूं, उसको किसी के जीवन में मैं कुछ परिवर्तन उसी नॉलेज से ला सकूं. यह आपका यदि गोल होता है, तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ वो गोल में जुट जाता है. इसके साथ साथ जो मटेरियल वर्ल्ड की जो कामनाएं, लेकिन अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है मोक्ष, वो अपने आप को मुक्त कराना, उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए. तो यही चारों चीजें जब आप करते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर वो आपका पुरुषार्थ कहलाता है. We see all these dharma, artha, काम and moksha. Your self efforts are very, very important to walk on this path and to achieve the nirvana, the liberation. So that is all covered in the chapter number 2. In the chapter number, in addition to this, Vasishtha Muni also gives the tools which are called 4 gatekeepers. मोक्ष के 4 द्वारपाल इसको कहा जाता है. Shama Dhamma combined together, called as self-control in English.
शम माने पीस ऑफ माइंड, अपनी शांति, दम माने अपने इंद्रियों के ऊपर आपका होना कंट्रोल, नो, हैविंग अ से ओवर योर सेंसेस, दोनों कंबाइन टुगेदर इट्स शम दम इज कॉल्ड एज सेल्फ कंट्रोल हियर. देन योर विचार, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह के प्रश्न मन में उठना. द इंक्वायरीज, द सेल्फ इंक्वायरी लाइक दिस इज कम्स अंडर द विचारा, द सेकंड गेट कीपर, मोक्ष का दूसरा द्वारपाल. तीसरा यहाँ पे बताया गया संतोष, आपकी जीवन में आपको वो तृप्ति होना आवश्यक है. No, the third one is said here is that contentment in your life, that santosha, that contentment, that whatever I have is more than enough. No, I'm doing something not to achieve something, but whatever is there, I am already contented in that. Then I'm putting my efforts. That contentment is very important. That gratitude towards master is very important. And the fourth one is the company of the good people. जो चौथा मोक्ष का द्वारपाल है वो है साधु संगति. यदि आप ऐसे ही लोगों के साथ रहते हो, स्टूडेंट से वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, बिजनेसमैन का ग्रुप बनाते हैं, अध्यात्म की मार्ग पे चलने वाले उनका ग्रुप बनाते हैं. व्हेन यू फॉर्म द ग्रुप of associated people where you want to progress in your life, it's called sadhu sangati. It's called the company of the good people, the people who are allowing you to walk, achieve your objectives in life. So Art of Living, you'll find a lot of all such people come together, form a group. The way we are forming an I Meditate Club here, and we are pursuing this journey ahead together. That is what is Sangachatvam. Let's move together. So that is the fourth gatekeeper. वह अपना मोक्ष का चौथा द्वारपाल है, साधु संगति. So यह मोक्ष के जो चार द्वारपाल है और पुरुषार्थ है, अपना स्व प्रयत्न है, जो अपना सेल्फ एफर्ट है. This is what is covered in the chapter number 2. The chapter number 3 covers that, okay, if you want to get free from this, then you need to understand how it's all created. So that is where the Utpatti Prakaran, the chapter number 3, the creation of this entire universe comes into picture. And Vasishtha Muni, petal by petal, explains multiple stories are there, very beautiful stories, which will take you deeper inside this knowledge. So that is where we come to know that this entire world is created when that Ishvara, that Paramatma, Chaitanya, awareness, we can call it Brahman, Shiva, with any name you call it, is really material. With that thing, just like a wave that comes in the ocean, that spuran, वो स्पुरन उनके अंदर उठ जाता है और वह चैत्य कहलाता है. चित्त नहीं, चित्त भी नहीं, chaitya कहलाता है. वो स्पेशल something, I am something separate, that feeling of separateness, and I want to express myself. वो स्फुरन उठ जाता है और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे चित्त की निर्मित होती है. चित्त को मन भी यहाँ पे कहा है. चित्त मनन करता है, इसलिए इसके मन कहते हैं. तो the one which is chitta, it's also called as mind, that is created, and in that chidakash of the Lord, of the Brahman, of the Shiva, all these things appears. All the Panchatanmatras come into picture, all the 5 elements come into picture and combined together, it projects this entire universe. That is how this Srishti, that is how this entire universe is, this world is created. Okay, so once we have understood that behind all this world, behind all this creation, there is one source. That is what is the non-duality. It's where the Advaita then comes into picture. But when we have to live in this world, we have to be with the people. We have to do your day-to-day routine life. How do we behave that? How do we do that? No, that what comes into chapter number 4. यही चौथे प्रकरण में आता है, स्थिति प्रकरण में, कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते समय किस तरह से पूर्ण अपने पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको करके, जिस तरह से यहाँ पे योग माया, जो माया का यहाँ पे आवरण है, उसके साथ जीते जीते ऐसे आगे बढ़ सकते हैं. आपको स्थिति प्रकरण में देखने को मिलता है. अब ये देख लिया, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण जान लिया, स्थिति प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण देख लिया, स्थिति प्रकरण देख लिया. अभी आपको जो है वो उपशम में जाना है, माने आपको पूरी तरह शांत आपको विलीन होना है. आता है 5 प्रकरण में. That comes in the 5th chapter, उपशम प्रकरण, on dissolution. Dissolution of what? Dissolution of this, all the tendencies, dissolution of your mind, dissolution of this outgoing वृत्ति, टेंडेंसीज ऑफ, ये जो अपने बाहर मन की जो बाहर और लगी रहती है, बहिर्मुख यह होता रहता है, उसको अंतर्मुख करना, उसको शांत करना, यह हम लोग उपशम प्रकरण में देखते हैं. एंड द 6th and the 7th chapter is nothing but the nirvana. This is liberation, that is freedom. The chapter number 6 gives us input about the
Purvardha of Nirvana, and the chapter number 7 is the Uttarardha of Nirvana. So this is combined together. इस तरह से जो अपना छठा जो चैप्टर है वह अपना निर्वाण है पूर्वार्ध का, और अपना जो 7वां चैप्टर है वो निर्वाण का उत्तरार्ध है। तो यहाँ पे जब हम लोग उपशम प्रकरण में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो बोलते हैं योग जो ज्ञान है वो ज्ञान एक मार्ग है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना एक मार्ग है। उसके साथ साथ यदि वह मार्ग के लिए सुकर नहीं है तो अपने सांसों के ऊपर ध्यान के अपने प्राणों के स्पंदन का निरोध करके भी जिस तरह से काकभूषण जो है वो अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग कहानियों के माध्यम से ये भी कहते हैं कि इस मार्ग में चलो, इस मार्ग में चलो, अलग अलग मार्ग है, किसी भी मार्ग में चलो तो अल्टीमेटली आपको मुक्ति मोक्ष और वो आत्मज्ञान से प्राप्त आपको हो जाती है। This is all the things that comes into Yoga Vasishtha. And after listening to this knowledge, what is the things that happens, what are the takeaways, is something that we'll hear from the people, real experiences in this journey. So once again, wish you all very, very happy and prosperous दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो फिर सुनते हैं बाकी सारे लोगों के अनुभव, उनके जीवन में योग वशिष्ठ से क्या क्या परिवर्तन आया। What is the transformation that Yoga Vasishtha knowledge and the master art of living has brought into their life? Let us hear from them. We'll start inviting one by one all our participants, and let's hear out them. Over to everybody. Jai Gurudev. Welcome everyone. So today's session is dedicated to the people's experience. When people get introduced to this knowledge of Yoga Vasishtha, what is the transformation that it can bring into their life? By after listening to this video, that will be very clear to us. आज का अपना यह सत्र उन लोगों के लिए समर्पित है जिनके जीवन में योग वशिष्ठ से कुछ तो बदलाव आया, और उसी बदलाव को वह अपने साथ वो यहाँ पे शेअर करने वाले। आजचं जे आपलं सत्र आहे हे योग वशिष्ठचे जे सत्र आहे त्याच्यामध्ये लोकांचे अनुभव, योग वशिष्ठ त्यांच्या जीवनामध्ये आल्यानंतर त्यांच्या जीवनामध्ये काय परिवर्तन झालं त्यांचे अनुभव आज आपण इथे ऐकणार आहोत। सो जैसे कि आपने मुझे सुना, यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बंधन नहीं है। यू कैन शेयर युअर एक्सपिरियन्स इन इंग्लिश, आप अपना अनुभव हिंदी में शेअर कर सकते हैं, तुम्ही तुमचा अनुभव मराठीमध्ये सुद्धा शेअर करू शकता। सो यू कैन शेयर युअर एक्सपिरियंस इन एनी लैंग्वेज, देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई भी बंधन नहीं है, आप जरूर किसी भी भाषा में यहाँ पे बात कर सकते हो। तो इसी सत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, ओवर टू यू। आपके जीवन में योग वशिष्ठ में क्या परिवर्तन लाया वो आप कृपया हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू संजय जी। जय गुरुदेव। मैं संजय पाटने औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, और इस सत्र में योग वशिष्ठ के सोमेश्वर जी और यतीन जी के साथ 31 मई से जुड़ा हूँ। जिस दिन से मैं योग वशिष्ठ में जुड़ा, मेरे जीवन में काफी अच्छा बदलाव आया। योग वशिष्ठ का ज्ञान इतनी अच्छी तरह से मैं समझ पाया हूँ, मेरे जीवन का परिवर्तन का कारण वो बन चुका है। ये तो क्या है, योग वशिष्ठ का मैं थोड़े से एक वाक्य में इंट्रोडक्ट करता हूँ। भगवान रामचंद्र, राजकुमार रामचंद्र और महर्षि योग वशिष्ठ का वो संवाद है, ज्ञान की चर्चा है। वो ज्ञान की चर्चा सुनते सुनते मैं मेरे जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन के जो भी संघर्ष है उसकी तरफ मैं तटस्थता से देखना आरंभ कर लिया है। देखो, जीवन है, जीवन में तो ये सभी बातें आती है। यहाँ पे सुख है, दुख है, प्रॉब्लम्स है, बिजनेस प्रॉब्लम्स है, कौटुंबिक प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स है हमारे साथ। लेकिन इन घटनाओं को लेकर मैं अलिप्त हो चुका हूँ। मुझे जीवन में प्रति जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं उसके प्रति उसके देखने का नजरिया बदला है। मैं वो प्रॉब्लम्स को मैं और एक विशाल नजर से देखता हूँ, जो मुझे देखने में वो प्रॉब्लम्स और छोटे लगने लगे। उस प्रॉब्लम का जब छोटा लगता हूँ तो मैं उस प्रॉब्लम पे ओवरकम और अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। देखो, ये जीवन का हमारा प्रवास और योग वशिष्ठ का प्रवास आज भी ऐसा लगता है, वो घटनाएं आज भी घट रही है। हम हमारे अंदर के राम को योग वशिष्ठ का आज भी समझा रहे हैं।
यही तो बातें है। हम वर्तमान में रहना, आज हम सपनों में जी रहे हैं, हम भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम हमारे जीवन में हम क्रिएट कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम के प्रति तटस्थता से जब देखते हैं तो आसान हो जाता है। हम आज की तरफ देखते हैं, भविष्य आज अगर मेरा सही है तो मेरा भविष्य कैसे खराब हो सकता है, और मैं भूतकाल जो मेरा बीत चुका है उसके बारे में क्या सोचूं। कितना खूबसूरत है ना। आज की तारीख में आज मैं जीता हूँ, आज का जीवन को सफर करता हूँ, देखता हूँ, और मैं प्रैक्टिकल हो जाता हूँ। मेरे में पिछला इंप्रेशन रखकर मैं आज का जीवन जीव हूँ, तो मेरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। मैं आज के तारीख में आज में जीना चाहता हूँ, और मुझे योग वशिष्ठ ने वो सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उस वशिष्ठ जी का, जिन्होंने मेरे जीवन में ये कुछ सब कुछ लाया है। और इनका कारण बने जो सोमेश्वर जी और यतीन जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मार्ग में प्रशस्त किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव यहाँ पे हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब हम लोग कुछ और भी यहाँ पे अनुभव सुनेंगे और इस सत्र को इसी तरह से जारी रखेंगे। सो जो अपने अगले पार्टिसिपेंट है संगीता जी, वो भी अपने साथ जुड़ चुकी है। सो संगीता जी, ओवर टू यू, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपके जीवन में योग वशिष्ठ ने क्या परिवर्तन लाया वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू। Thank you and Jai Gurudev to all of you. My name is Sangeeta and career-wise I'm a fashion designer and I'm here in Art of Living from past 25 years and I'm a teacher also by Gurudev's blessings. So his instrument. And coming here in Yog Vashisht has really brought many changes in my thinking, in my mental conditionings and in the conceptions and the perceptions that one has in its own life. So with this filled up with all these ego sense, everything comes. And you know, here, listening over here, being every day in the session, and of course, giving your takeaways also helped me a lot to elevate here. So being with, you know, in the spherical thinking now, it is like the elevation of not only your thinking, but it is that which the way, the path which is so shown over here, walking on that path also leads you to that liberation. So I would just love to share a few of them. What are the, you know, being here are the, you know, there are the filters which keeps on, you know, applying every time you hear many stories. So those filters in the mental conditionings, in your memories which are dissolved, in the ego sense, and of course that ignorance which we are going through, and the birth and the death cycle also that we keep on going through from so many lifetimes. Yeah. And then what happened is, like, the light shines. Light shines means you come to know exactly. And the first thought that rised up is, who am I? So with that, and who am I, you keep on, you know, going ahead with this question. Every time I went on, it was a very contemplating, you know, on myself, how I can do that, and how, who am I, what am I, why I'm here, what is the world appearance, so how this is so truth, what is the truth and what is the unreal and real. So the difference between that also we came to know, like, you know, the difference between the waking state, dreaming state, and of course then coming up in that, going up to the fourth state of Turiya. So all these experiences, of course, I can say it was very true with me, and the experiences which took me ahead with the sharp intelligence. Of course, first comes the self-effort. So putting your self-effort, then having the sharp intelligence with wisdom. Yeah? And the final thing, what I learned is the best thing I can tell you, while doing your actions, you are still in that inaction. Means हम कर्म करते हुए भी हमारे खाते में अगर कर्म नहीं आता है, then what happens? That connecting yourself with that truth, that Brahman leads you, and you can attain
the liberation, and it cuts you from all the bondages of the birth and death. So with this state of mind, what I can say is the equanimous state of mind, and everything in Brahman, being yourself, being the source, experience that self is what I have been learning from Yoga Vasishtha. So thank you very much, Someshwarji, for getting me into this knowledge, and it has really worked very well for me. Yeah, thank you. Jai Gurudev. Thank you so much, Sangeeta ji, for sharing that wonderful experience. We have few more participants who would like to share their experience. Let us hear from them. तो अपने अगले पार्टिसिपेंट नेहा जी भी अपने साथ जुड़ चुकी है. नेहा जी, would you like to share your experience? Please go ahead. Yes. नमस्कार, जय गुरुदेव. माझं नाव नेहा परळीकर आहे. मी मुंबई, महाराष्ट्रामधून आहे. मी आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये साधारण 1996 पासून आहे. अधूनमधून आश्रमात पण जाऊन आलेली आहे आणि इतर पण काही लाईफ कोर्सेस मी केलेले आहेत. मी रेकी ग्रँड मास्टर पण आहे आणि त्या कोर्सेस मधनं मला एवढं तर क्लिअर झालं होतं की आपल्या आयुष्यात जे काही घडतंय ते सगळं आपणच घडवतोय आणि त्याची जबाबदारी पण आपल्यावरच आहे आणि ते पूर्ण केल्याशिवाय गत्यंतर नाहीये. ते पूर्ण नाही केलं तर रिपीट होत राहणार. हा जन्म संपेल, पुढचा जन्म घेऊ, पण ते रिपीट होत राहणार. आणि मी आयुष्यामध्ये खूपच म्हणजे त्रास पण खूप भोगलाय, फसवणूक त्रास. पण मला हे पचत नव्हतं की हे मी स्वतःनी क्रिएट केलंय. मी पास्ट लाईफ रिग्रेशन कोर्सेस पण केले आणि त्याच्यामध्ये मी बघितलं होतं मी किती त्रास दिलाय लोकांना, पण तरी मी ते सारखी विसरत होते. तो अवेअरनेस टिकत नव्हता. मग योग वशिष्ठ सुद्धा ह्याच्यापूर्वी 2दा केलाय अभ्यास. पण ह्या योग वशिष्ठामध्ये मला ते क्लिक झालं, ते पचलं मला की हा सगळा त्रास मीच दिलाय आणि तो मी पूर्ण नाही केला तर तो रिपीट होत राहणार. आणि आता आयुष्य माझं वय तसं आहे जास्त, तर थोडं फार राहिलंय. त्याच्यामध्ये मी जर पूर्ण नाही केलं तर परत दुसरा जन्म, परत हेच रिपीटेशन सगळं. मग तेव्हा गुरुजी असतील नसतील, साधना असेल नसेल, सपोर्ट काय असेल माहिती नाही. तर मग मी काय ठरवलं की काही दिवसांपूर्वी खूपच एक त्रासदायक प्रसंग घडला आणि खूप म्हणजे अगदी मरण यातना देणारा घडला आणि मला असं ते स्मशान वैराग्य टाईप आलं आणि मी ते चूज केलं की हे टिकवायचं. आपण स्मशान वैराग्य तर स्मशान वैराग्य, पण आहे ना वैराग्य, हे टिकवायचं. आणि मी ते टिकवायचं ठरवलं आणि मग ना 2-3 दिवस ते टिकवलं, साधारण 4-5 दिवस, आणि ना मी त्यातनं बाहेर पडले. मला ते अगदी पचलं की हो, आपणच दिलाय त्रास, तो आपण परत घेतोय. आणि हे ह्यासाठी सगळ्यासाठी हे योग वशिष्ठाचं जे नॉलेज आहे की सगळं काही मृगजळच आहे, कशाला काही अर्थ नाही, हे बरेच वेळा ऐकलं होतं. पण ते आता मला क्लिक झालं की कशाला काही अर्थच नाहीये आणि सोडून देता यायला लागलं. आणि आता सध्या आज तरी ह्या क्षणाला मला असं वाटतंय मी पूर्ण झाले. माझं आता सगळं जे काय प्रारब्ध असेल ते भोगीन मी, पण त्याच्यात फारशी अडकणार नाही. तिथनं मी मनानी नाही तर स्वतः फिजिकली बाहेर पडीन आणि पडते तसं, आणि शांत झाले मन माझं. अगदी जय गुरुदेव. थँक्यू व्हेरी मच. अख्ख्या ग्रुपला थँक्यू. सोमेश्वरजी तुम्हाला थँक्यू. ते जोशी दादा होते त्यांनी घेतलं, त्यांना थँक्यू. आपल्या इथे पार्टिसिपेट करणारे आणि ह्या आता संगीताजी, संजय दादा, सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. कारण हा सपोर्ट खूप मोठा आहे. आणि सध्या जे काही आपण चर्चासत्र सुरू केलंय त्याच्यातनं तर अजून टेक अवेज मिळत राहतात. जय गुरुदेव. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. जय गुरुदेव. थँक्यू सो मच नेहाताई. सुंदर तुम्ही तुमचा अनुभव सांगितला. जीवनामध्ये योग वशिष्ठाचं ज्ञान कसं परिवर्तन आणू शकतं त्याचं ज्वलंत उदाहरण नेहाताईंच्या स्वरूपात आपल्या समोर आहे. थैंक यू सो मच. तो अपने अगले पार्टिसिपेंट भी अपने साथ जुड़ चुके हैं. जयश्री जी. जयश्री जी, आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? प्लीज गो अहेड.
जय गुरुदेव. मी जयश्री पाटील औरंगाबादवरून आहे. व्यवसायाने पण मी टीचर आहे आणि गुरुकृपेने पण मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगची टीचर आहे. आणि मला खूप छान असं वाटतं की मी गुरूंची एक शिष्य आहे. माझे गुरु श्री श्री रविशंकर आहेत आणि माझं असं पूर्ण मत आहे की त्यांना माहिती आहे आपल्याला कोणत्या वेळेला काय काय द्यायचंय, त्याप्रमाणे ते बरोबर आपल्याला नॉलेज मध्ये, अनुभवातून, ज्ञानातून सगळं काही देत आहेत, अशी माझी 100% श्रद्धा आहे. आणि योग वशिष्ठ बद्दल म्हणायचं तर गुरुजींकडनंच ऐकलं होतं की योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए. पण ते ऍक्च्युली काय व्हायचं, आपल्या रोजच्या जॉब, घर हे ते वाचायला घेतलं की थोडं कधी झोप येणं, कधी ते डोक्यावरून जायचं, कळत नव्हतं. मग मी एकदा गुरुजींना आश्रममध्ये प्रश्नही केला होता, गुरुजी आप तो बोलते हो योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए, पर वो तो कुछ समजता नहीं. मग गुरुजी म्हणले होते की फिर भी पढ़ना है. म्हणजे आता गुरुजींनी आज्ञा दिलीये तर नक्कीच त्याच्यामागे काहीतरी गुड आहे, आपल्याला हे करायचंय. म्हणजे आपलीच कमिटमेंट कमी पडते असं मला तेव्हा कळालं. आणि त्याच्यानंतर योगायोग असं झाला की कोरोनामध्ये वेगवेगळे सेशन पण सुरू होते आणि सोमेश्वरजींचं सेशन मी नेहमीच अटेंड करते, वेगवेगळं अष्टवक्र असो या गीता, त्यांनी बरेच सेशन घेतले होते. मग त्यांनी एकदा यतीन जोशींना पण इन्व्हाइट केलं की योग वशिष्ठासाठी. म्हणलं वा, आता हे आपल्यासाठीच आहे, आता हे आपण कमिटेडली ऐकायचंच आहे. कारण की युट्यूबला आहेत व्हिडिओ वगैरे, पुस्तकही खूप वाचले, पण इतकं काहीच क्लिअर होत नव्हतं. पण जेव्हा हे सेशन अटेंड केले आणि आपली पण ती कमिटमेंट टाकली की आपल्याला हे रोज करायचंच आहे, तेव्हा मात्र मग ते जेव्हा एक एक प्रकरण आम्ही ते स्टोरीतून ऐकत गेलो आणि त्यांचा इतका अनुभव होता ना, त्यांनी इतकं छान सांगितलं की ते सगळ्यांचाच अनुभव असा झाला की सगळ्यांना ते खूप छान कळालं. आणि नुसतं नॉलेजच्या स्तरावर कळालं असं नाही, तर त्यातून ते कळालं की राम, आपण सगळे म्हणतो रामांना पुरुषोत्तम मानतो, पण हे पुरुषोत्तम ते बनले कसे, याचं मूळ हे सगळं योग वशिष्ठामध्ये आहे हे ते जाणवलं. आणि खरंच म्हणजे जसं ते दुधात साखर मिसळावी तसं हे आयुष्यात आमच्या ते योग वशिष्ठ आणि त्याच्यानंतरचे जे ते बदल, तर ते असं शब्दातही आपण एक्सप्रेस करू शकत नाही. की ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ना की बऱ्याचदा बुद्धी लावतो आपण इथे की हे असंच का, हे असंच का, मानत नाही आपण ना. पण गुरुजी नेहमी म्हणतात कुछ जान के चलो कुछ मान के चलो. ह्या जे आपण एकदम ब्लँक स्लेट प्रमाणे जेव्हा ते आपण ऐकतो ना, तेव्हा ते परिवर्तन आपल्या आयुष्यात दिसायला लागतात की आपण एक्सेप्टन्स वाढतं, सजगता वाढते आणि ठीक आहे काही हो वातावरणात बाहेर आपण आपल्या त्या अवेअरनेस मध्ये राहतो आणि ती जी साक्षीभाव आहे तो वाढला. आणखी खूप काही आहे सांगण्यासारखं, पण मी तर म्हणते तेच आता जे उदाहरण आपण बघितलं ना की हरणीच्या नाभीतच ते हे असतं कस्तुरी, पण ती बाहेर शोधत असते ना, आणि फक्त ते आपल्यात आहे हे दाखवायसाठी गुरु पाहिजे ना, आणि ते गुरु मला मिळाले आणि ते वेळोवेळी ते मार्गदर्शन करता, याच्याबद्दल थँक्यू. आणि आपण सगळे इथे जमलेलो आपण ज्ञानासाठी एकमेकाला पूरक आहोत, याच्या मागे ते गुरुच कृपा आहे. त्याच्यामुळे ते सगळं जोडलेल्यांचं पण खूप खूप अभिनंदन आणि थँक्यू सो मच. जय गुरुदेव. Thank you so much, Jayashri ji. That was a really wonderful experience sharing. खूप सुंदर पद्धतीने तुम्ही आपला अनुभव योग वशिष्ठांनी काय तुमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन झालं, जाणवलं आणि त्याचा अनुभव केला ते मांडलं. थँक यू सो मच फॉर दैट. तो अपने अगले पार्टिसिपेंट अपर्णा जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं. अपर्णा जी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे सबके साथ? प्लीज गो अहेड. जय गुरुदेव. मैं आर्ट ऑफ लिविंग में एक्चुअली मतलब वैसे तो आर्ट ऑफ लिविंग बहुत पहले से पता था. 2019 में आई लॉस्ट माय फादर और थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई. हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए. फिर सबने मतलब मेरी डॉक्टर ने खुद मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बारे में वापस ये याद दिलाई. मैंने इमीडिएटली आर्ट ऑफ लिविंग किया. जैसे क्रिया सुदर्शन क्रिया स्टार्ट करी, वो तो फिजिकल चेंज मतलब इफेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो गए. कामनेस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, डिप्रेशन कम हो गया. फिर वो जैसे ही लिंक आते गए, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, ये सब सिर्फ सुना था ये इसके बारे में. बहुत बार पढ़ने की भी कोशिश की थी भगवत गीता वगैरह, पर कुछ भी नहीं समझ में आया था. जैसे जैसे सेशन स्टार्ट किए, बहुत कुछ नॉलेज समझा, बहुत अच्छा लगने लगा. फिर किसी ने बताया योग वशिष्ठ के बारे में.
पर इतना मतलब उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, इसलिए इतना अवेयरनेस नहीं आया। जिस नॉलेज में थे उसी में खुश थी, बस नॉलेज पता चल रहा था बस। और डे टू डे लाइफ में क्रिया की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो गया था, लाइफ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मुझे सोमेश्वर जी का लिंक मिला योग वशिष्ठ का, ऐसे ही बाई लक मैंने बोला चलो देखते ज्वाइन करके, एटलीस्ट क्या है वो तो पता चलेगा। भगवत गीता का और अष्टवक्र गीता बहुत पसंद आ रही थी, पर सिर्फ सुन रही थी, नॉलेज बढ़ रहा था, बाकी कुछ नहीं। पर जैसे जैसे योग वशिष्ठ के सेशन चलते हैं, जैसे यतीन जी का सबसे पहले मैंने सेशन अटेंड किया, बहुत सारी बातें पता चली, बहुत मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आज की डे टू डे लाइफ में, मतलब अपना डे टू डे लाइफ भी हम कैसे अच्छे तरह से जी सकते हैं, और उस मुक्ति के मार्ग पर आत्मज्ञान क्या होता है, भगवत गीता पता चली, अष्टवक्र गीता पता चली, मीनिंग पता चला, बहुत नॉलेज मिला, कठोपनिषद से मृत्यु के बारे में पता चला, डिप्रेशन कम हो गया। पर डे टू डे लाइफ में हम कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ योग वशिष्ठ से पता चला। मतलब कैसे अवेयरनेस आ रहा है। अभी गुस्सा भी आता है, पहले की जैसी स्थिति एकदम मैं पूरी तरह से ये नहीं हो गई, गुस्सा अभी भी आता है, झगड़े अभी भी होते हैं, पर नेक्स्ट मोमेंट वो अवेयरनेस आ जाता है, किसकी गलती है, मेरी क्या गलती है, ये सच है क्या, ये भ्रम है, मतलब क्या है ये सब। इमीडिएट 2 क्षण में वो गुस्सा डाउन हो जाता है, मतलब इमीडिएटली हम अपने सांसों पे ध्यान आ जाता है। ये सब योग वशिष्ठ की वजह से है, जिसके वजह से वो नॉलेज जो मिला था भगवत गीता अष्टवक्र, तो वो भी क्या है ये मुझे योग वशिष्ठ की वजह से पता चला, वो नॉलेज एक्चुअली क्या है। और योग वशिष्ठ के सेशन अटेंड करने के बाद ये पता चला कि मैंने जिस गुरु को अपनाया है, जिनकी क्रिया में कर रही हूँ, मतलब किसके साथ जुड़ी हूँ, उनका इंपॉर्टेंस मुझे पता चला। ये जो सब योग वशिष्ठ के सेशन से जो हम लोग आत्मसात कर रहे थे, ये सब गुरुजी ने सबसे पहले ही दे दिया था, सुदर्शन क्रिया करके वगैरह। तो उसका हमारे जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब मुझे अवेयरनेस योग वशिष्ठ की वजह से आया। आज मैं ऐसा बोलूंगी कि ये योग वशिष्ठ का सेशन, सबसे पहले आप सुदर्शन क्रिया सीख लो और फिर योग वशिष्ठ के सेशन अटेंड करो। आई एम श्योर आज के डे टू डे लाइफ में हर किसी को ये बहुत और बहुत लागू पड़ेगा। मतलब कैसे कि आपको डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत सबको जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सबकी लाइफ, मेरे भी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, बस उसके बारे में अवेयरनेस और उसके वजह से होने वाला इम्पैक्ट मेरे ऊपर का खत्म हो गया, और जिसकी वजह से लाइफ बहुत अच्छी और हैप्पी हो गई है, आई कैन से। पहले ये नहीं था, पहले बहुत था दिमाग में, ये ऐसा नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये बहुत दिमाग में ये सब चलता था। अब वो सब खत्म हो गया है, पता है ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसके आगे क्या हो गया, ये भी अब सब पता चला। ये जो अवेयरनेस आ रहा है ना, ये आज के जमाने में, आज के डे टू डे लाइफ में सबको बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुजी भी बोलते हैं कि योग वशिष्ठ सबको सुनना चाहिए। ये क्यों बोलते हैं गुरुजी ना, ये आप जब सुनोगे, पर मैं कहूंगी कि योग वशिष्ठ पढ़ो सुनो पता नहीं, पर जब मैंने यतीन जी के सेशन अटेंड किए, उसके बाद जब मैंने सोमेश्वर जी के जब सेशन अटेंड किए, वो जो छोटी छोटी पंखुड़ियां जो रह गई थी खुलने की, वो सारी खुल गई इस सेशन से। मतलब सिर्फ पढ़ने से जो मुझे इतना फायदा नहीं होता था, जो मुझे ये सुनने के बाद, उसके बाद हम चर्चा करते हैं, हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं उनको पूछते हैं, उनको भी वो सॉल्व करते हैं। ये जो तरीका होता है ना, इससे मेरे ख्याल से किसी भी आदमी को अपने डे टू डे लाइफ में डिप्रेशन से बचने का या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बचने का अच्छा सही मार्ग मिलेगा। और ये इसी से फिर हम आगे मुक्ति की तरफ भी चले जाएंगे। मुक्ति की तरफ तो अब जाएंगे ही जाएंगे, वो तो नो डाउट, क्योंकि गुरु साथ है, गुरु ने जो ये जो पद दिया है उनके ही मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने जीवन में योग वशिष्ठ को लाए, लेकिन उससे पहले आप सुदर्शन क्रिया को लाए। जैसे ही आप सुदर्शन क्रिया को लाएंगे, जब वो योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, तो आपको क्या है योग वशिष्ठ, क्या है डे टू डे लाइफ, इसका सही मायने में ज्ञान हो जाएगा, और आपको कैसे उसको अप्लाई करना है ये भी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं अपने गुरु के प्रति बहुत 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 धन्यवाद करूंगी कि उनके वजह से मुझे ये सब मिला। जय, थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी, आपके वजह से तो बहुत बहुत लाइफ में बहुत बहुत परिवर्तन आया है। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपर्णा जी, कितना सुंदर
से किसी के भी जीवन में ये सब कुछ अपर्णा जी ने यहाँ पे व्यक्त किया है, ये सिर्फ अपर्णा जी की अकेले की स्थिति नहीं है, हम में से कई लोग ऐसी स्थिति से गुजरते हैं। गुरुदेव अपनी लाइफ में आते हैं, सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, योग वशिष्ठ का ज्ञान यहाँ पे सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में श्रवण मनन वाचन निधिध्यास अपने जीवन में अपनाते हैं, तो क्या परिवर्तन ला सकता है, इसका सुंदर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे अपर्णा जी ने अपने आप को व्यक्त किया। अपर्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने साथ दिव्या जी भी जुड़ चुके हैं। दिव्या जी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन योग वशिष्ठ have brought into your life? Over to you, please go ahead. Thank you, Someshwar ji. So first of all, I would like to acknowledge the I Meditate team for doing such a wonderful job and completing 100 days of Yoga Vasishta. It's a big achievement. So I am Divya, and currently I'm located in Bangalore, and I'm an IT professional senior manager. So how has Yoga Vasishta changed my life, right? I'm also, to add, I'm also an art of living teacher, right? So already into the spiritual path, Yoga Vasishta just transformed me from my perspective of things into something which could give me more clarity in my day-to-day activities. It expanded my consciousness from getting stuck into these small mind matters to start looking at things from a broader angle, right? तो योग वशिष्ठ जो है ना, हमारी दृष्टिकोण को ही बदल देता है। एटलीस्ट मैंने वो एक्सपीरियंस किया। जो हम छोटेपन में रह जाते हैं, उससे हम वी स्टार्ट लुकिंग एट इट एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड दैट मेक्स अ लाइफ इवन लार्जर द लाइफ जो बोलते हैं ना, वो योग वशिष्ठ सुन के एकदम मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो फॉर मी दैट वाज द मेन टेक अवे, राइट? उसके अलावा तो there are many more benefits that keep coming in, that because it's clarity of mind, sharp intelligence, focus, वो तो everything is just comes by itself. But this was the major takeaway. Yeah. With that, thank you Someshwar ji, Sangeeta ji, and the whole I Meditate team for giving us this opportunity to attend it. Thank you. Thank you so much, Divya ji, for sharing that beautiful experience, how Yoga Vasishta can change one's life. We got to know that. Thank you so much for that. Thank you. तो अपने अगले पार्टिसिपेंट सविता शर्मा जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। सविता जी, योग वशिष्ठ के आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। Over to you. इस ग्रुप से मैं 5-6 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं योग वशिष्ठ के जब कोर्सेज चलते हैं, तो ऐसी बातें आती हैं जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते, और वो बातें हो जाती हैं। ये एक बहुत खास बात है यहाँ पे। जैसे कृष्ण भगवान ने माया की बात की है, तो हमें पता है कि ये संसार उनकी माया से आवृत है पूरी तरह से। लेकिन जब हम योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो माया क्या है, और वो कैसे वो काम करती है, और उससे भी माया से भी परे हम सोच सकते हैं, और अपने कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत ज्ञान होता है कि हमारा विस्तार कितना अधिक है। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं बार बार, हु आर यू, आप कौन हो। तो you don't know what you are, तो you are consciousness, मतलब हम एक चेतना के स्वरूप में हैं, लेकिन हमारी चेतना और ये चेतना का विस्तार कहाँ तक है, इसका हमें ज्ञान शायद कहीं नहीं मिलता है, और वो ज्ञान इस योग वशिष्ठ से ही हमें पता चलता है। और ये तो सिर्फ शब्द से ही होता, शब्द योग वशिष्ठ एक पुस्तक है जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं, लेकिन जब आप इस कोर्स को, जब आप ये योग वशिष्ठ सुनते हैं, तो उसका अनुभव भी उसमें प्राप्त होने लगता है, वो शब्दों से परे है। और हम इस ग्रुप में एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे में जो भी डाउट्स हैं, वो हमारे डाउट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, और फिर हमें मतलब जो भी सही चीज है वो हमें पता लग जाता है। तो इससे बहुत ही फायदा होता है।
तो ये एक बहुत ही अनूठा एक योग का एक पुस्तक है जो संसार में शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता हो। तो ये साइंटिफिकली और ये बहुत एडवांस्ड है और ये बहुत ही अपडेटेड भी है। तो इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो ये आप सब जरूर इसे एक बार जरूर सुने और जुड़े और लोगों को भी जोड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सविता जी। सविता जी ने कितना बढ़िया बताया। ये योग वशिष्ठ का जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ का जो नॉलेज है, ये कोई ऐसे अध्यात्म के मार्ग पे आपको आगे बढ़ाएगा ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भी इसमें कई सारी चीजें, इनफैक्ट कई सारी चीजें जैसे मैट्रिक्स, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, इस मूवी के जो कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, तो इस तरह के जो लेटेस्ट रिसर्च इन स्ट्रिंग थियरी, इस चीज को भी यहाँ पे कई साल पहले समय की क्या गति होती है, समय का क्या होता है, काल गणना क्या होती है, ऐसे कई सारे अनेक चीजें योग वशिष्ठ में यहाँ पे देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और जैसे सविता जी ने कहा, हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म सेशन करते हैं, कई सारे डाउट्स इसमें से क्लियर हो जाते हैं। तो it's very good idea to go ahead and read Yoga Vasishtha and also be a part of this group where you can discuss what are your takeaways here. Thank you so much Savita ji for sharing your wonderful experience. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। थैंक यू। चलिए तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपने साथ तारांगिनी जी जुड़ चुकी है। तारांगिनी जी, over to you. Would you like to share your experience of Yoga Vasishtha? Please go ahead. जय गुरुदेव। मेरा नाम तरंगिनी है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग में करीब 13-14 साल से हूँ। और योग वशिष्ठ के बारे में अगर बताना है तो बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, कि वो कितना अच्छी तरह से मेरे लाइफ को चेंज कर गया। तो एक बार गुरुदेव ने बताया था आश्रम में, जब हम गए थे एडवांस कोर्स करने के लिए, 2010 या 11 की बात है। तो तब उन्होंने बताया था कि आप लोगों ने योग वशिष्ठ पढ़ना है। तो इमीडिएटली मैंने वही आश्रम में से बुक खरीदी। वो मुझे मिली थी योग वशिष्ठ इंग्लिश की बुक। तो स्वामी पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी है। तो इंग्लिश बुक थी वो, और उनका करीब 6 महीने तक मैंने वो बुक पढ़ी। इंग्लिश बुक शुरू में जब पढ़ी वो बहुत मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगी, लेकिन उतने में हिंदी वर्जन आ गया उसका। तो हिंदी ट्रांसलेशन आने के बाद वो हिंदी ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे वो मैंने तब से मैं वो हिंदी बुक भी पढ़ रही हूँ, बीच बीच में से इंग्लिश बुक भी पढ़ लेती हूँ। और बीच बीच में बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस, ऑडियो ऐसे योग पे हुए, कुछ सेशंस हुए, वो भी मैंने सब अटेंड किए। और अभी रिसेंटली पिछली बार जो 100 सेशंस हमारे हुए, वो तो मैंने पूरा अटेंड किया। और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि वो पढ़ने में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और कुछ उसमें डिफिकल्टीज आ रही है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया, और मुझे ऐसे लगा तब कि ये आसान है। लोग बोलते हैं कि भाई ये इतना डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है, कहानी में वगैरह, लेकिन मुझे कुछ दिन पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये तो बहुत आसान है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू ही रखा, और ये अब हमारे 100 सेशन भी मैंने अटेंड किए, तो उसके बाद और भी मेरे लिए वो समझना आसान हो गया। और लाइफ में अगर आपको बोलना चाहूंगी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। उसमें जो नॉलेज दिया है वो अगर हम थरोली उसका अंदर हमारे उतारे, तो उसमें से जैसे हमारा बेसिक कोर्स होता है और उसमें 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसी तरह का उसमें नॉलेज है, और वही पॉइंट्स कहीं से वो फिर से आते हैं। तो वो हम लोगों को कभी कभी ऐसे लगता है कि वो जो बेसिक कोर्स के 5 पॉइंट्स है हमको लाइफ में उतारना है, और बस हम कोशिश ही करते रहते हैं कि उसमें हमारे लाइफ में उतारे। लेकिन योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद वो पॉइंट्स बहुत आसानी से हमारे जीवन में उतारने में मुझे बहुत सहायता मिली।
हमारे मन को कंट्रोल करना है, हमारे क्रोध को कंट्रोल करना है, और मन को जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से मोड़ना है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक तो नॉलेज पढ़ना अलग बात है कि जो हम बुद्धि के स्तर पे समझ लेते हैं, उसको फिर हमारे जीवन में उतारना ये दूसरी बात होती है। तो वो जीवन में उतारने के लिए इसका बहुत ही फायदा होता है। जैसे गुरुजी ने बाकी के दूसरे भी पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स भी इस योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद हमारे जीवन में हम लोग आसानी से उतार सकते हैं। और ये हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हम डे टू डे घर की लाइफ में हम जीते हैं, घर संभालती हूँ मैं पूरा, तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ सुख दुख सभी आता है सभी के जीवन में। तो उस समय अपने मन को कैसे रखना है और उसमें से बाहर कैसे निकलना है, जो भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं या डिफिकल्टीज आते हैं हमारे लाइफ में, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, ये आसानी से हम समझ जाते हैं कि हाँ चलो अभी ऐसे निकलना है। और वो हमारे को बराबर वो बाय इंट्यूशन बोलिए या वो नॉलेज का हमारे पास ज्ञान है इसलिए बोलिए, लेकिन हमको समझ में आ जाता है और मन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स में से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इतना अच्छा वो योग वशिष्ठ का नॉलेज है, बहुत ही मुझे पसंद है। और मैं यही सोचती हूँ कि और हर बार पढ़ते रहना, एक बार पढ़ के खत्म नहीं हो जाता है तो बार बार उसको पढ़ते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, थोड़ा थोड़ा ही क्यों नहीं लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है। जैसे यतीन जोशी ने भी बताया था कि हर बार उसको पढ़ते रहना है तो आपके लाइफ में वो बहुत चेंजेस लाएगा। तो मैं भी यही कहूंगी कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बाकी और लोगों के लाइफ में भी कैसे चेंजेस आएंगे और ये मैं कैसा इंट्रोड्यूस करूंगी और लोगों को भी, वो भी मैं कोशिश करते रहती हूँ। मैं सभी को बोलूंगी कि आप सब लोग भी ये पढ़िए भी और दूसरों को बताइए भी कि ये कितना अच्छा नॉलेज है और उसमें सबको लाने की कोशिश जरूर कर। इतना कहूंगी मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तारांगिनी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पे व्यक्त किया, धन्यवाद। अपने अगले पार्टिसिपेंट भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी जी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? प्लीज गो अहेड। जय गुरुदेव। जैसा कि आपने कहा कि योग वशिष्ठ के बारे में बताना है, इसमें सर बताने के लिए कुछ भी नहीं है, नाम में ही सब कुछ छुपा है। इतना सुंदर नाम है, नाम के आधार से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, क्या सार है, क्या रस है, इसको कैसे अपने जीवन में लाना है, नाम में ही छुपा है सर। और सर इसको पढ़ने के बाद और सुनने के बाद तो मेरा लाइफ ही में चेंज आया है सर। और पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते सर, 5 महीने से जुड़े हैं तो बहुत कुछ चेंज हुआ। ये तो मेरे फैमिली वाले बताएंगे, मेरे अगल बगल वाले बता सकते हैं, लेकिन सर उन लोग को भी हम नहीं ला सकते हैं, तो मेरे से ही सुनिए। बस ये लोग बहुत खुश हैं, हम बस जुड़े रहना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं और बदलाव लाना है, सीख के बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे जाना है इसके साथ ही। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चलिए तो इस सत्र को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, यतीन जोशी। यतीन जोशी अपना अनुभव आपके साथ शेयर करें उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस हियर। So one fine day, we all were conducting this I Meditate clubs team together. We all represent Art of Living organization, and we have been conducting all these knowledge sessions. We conducted Patanjali Yoga Sutra, we conduct Ashtavakra Gita, and when all these other Narad Bhakti Sutra that got finished, we were thinking what needs to be done. And that day, I just happened to announce that okay, let's start the Yoga Vashishta session, and with that intention, we announced the session. We just thought that we'll go ahead and watch Rishiji's video. And in between, I also heard a very good friend of mine. He is also Art of Living teacher, Yatin Joshi. So Yatin also have been conducting these sessions on Yoga Vashishta, and then he has also published his own YouTube series and videos. I was just having some idea about it. So I just thought of talking and checking with Yatin.
10:30 or almost 11 o'clock in the night, I called him that, Yatin, you are going to join me tomorrow at 7:30 for the Yoga Vasishtha session. No, because he's my friend, I could have that right on him. I exhibited that right. I took him granted. And that is how this journey has started. So after that, Yatin suggested a couple of books. So I bought this particular book, Subodh Yoga Vasishtha. That's by Suman Mahadevkar ji. She is an author of this book. She stays here in Pune. उनसे फिर मुलाकात भी बाद में हुआ, इस योग वशिष्ठ की किताब पढ़ना भी शुरू हुआ. And the next day morning, along with Yatin, we started the sessions. And that was our season one. Before season one, we completed around 17 or odd sessions, post which we started with this Yoga Vasishtha Mahavakya, in which we completed 100 sessions, which were conducted by Yatin. And it was such an amazing journey. Similar kind of experience sharing sessions were conducted, and many people have expressed their gratitude towards this knowledge. There is a lot of transformation that has brought by this knowledge into many people's lives, and all the credit goes to Yatin, because Yatin is the one who had taken this sankalpa, and he wanted to share this knowledge almost with every possible individual on this planet. Not just that, we all belong to Art of Living, and Shri Gurudev, Shri Ravi Shankar ji is our master. What master has given us, the depth of that, we were practicing it, we were getting benefit. But the real knowledge behind that is unfolded in Yoga Vasishtha. So that gratitude towards the master has multifold increased. That what master has given to us in our life, that is something which we realize. So there is a lot of transformation that being an Art of Living teacher, we have been conducting these courses, yet we got to details and depth of that knowledge. So that knowledge is really precious. And this is my experience, how Yoga Vasishtha got into my life and the transformation it has brought into my life. Now let us hear from Yatin, how Yoga Vasishtha got into his life, what are the transformation he got experience, and what are his visions to spread this knowledge to everyone. Over to Yatin. Jai Gurudev. धन्यवाद सोमेश्वर जी. जय गुरुदेव. योग वशिष्ठ के एक्सपीरियंस के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं ना, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, तो ये तब कहना उचित होता है कि जब ये हमने खुद अनुभव किया है. और इसका अनुभव मैंने बहुत अच्छी तरह से लिया. एक करीब 22 इयर्स ऑफ आईटी का जॉब, 22 साल आईटी में जॉब करते करते ऐसा लगा ये योग वशिष्ठ तो अभी 2008 से पढ़ रहा हूँ. तो वो पढ़ते पढ़ते जो ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगे, पहले तो विचारों में आते हैं, बाद में एक्शन में आते हैं. और ये भी योग वशिष्ठ ही सिखाता है कि पहले विचार और बाद में कृति होती है. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू होते हैं मन में ही कि कुछ अच्छा करना चाहिए. ये एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं और ऐसा करते करते रिटायर हो जाए तो फिर ये जीवन जिया ऐसा नहीं लगने लगा. और इसीलिए योग वशिष्ठ से वो जो एक प्रेरणा मिली, तो पहले ये विचार आया कि अच्छा मतलब क्या, तो इसी ज्ञान ने जिसने मुझे अभी कुछ क्लैरिटी देना शुरू किया है, इसी को सारे लोगों के पास लेकर चलते हैं. चलो यही करेंगे, जीवन का पर्पस ही यही है. और फिर बार बार गुरुदेव भी बोलते थे कि कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहिए, बड़े काम करो, छोटे छोटे संकल्प के बदले बड़े बड़े संकल्प लिया करो. उसके बाद योग वशिष्ठ ऋषि और हमारे गुरुदेव ये एक ही बातें बताते हैं कि आप जो चाहिए वो मिल सकता है, बस आपका संकल्प होना चाहिए. आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्राप्त नहीं होगा करके. तो सोचा चलो ये बाकी का जो बचा कुचा जीवन है ये इस बात के टेस्टिंग के लिए लगा देते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग कहते हैं क्या सच में होता है कि नहीं होता है. और वो देखने के लिए फिर ये संकल्प लिया कि जॉब छोड़े और योग वशिष्ठ के ऊपर शुरू करें. और उसके साथ पहले से काम करना शुरू हो गया था. बाद में तो फिर एक और बिजनेस भी किया और वो चल रहा है बहुत अच्छे से. उस बिजनेस को भी टेस्ट करना ये एक जीवन का उद्देश्य हो चुका था. तो गुरुदेव की कृपा, योग वशिष्ठ में दिया हुआ ज्ञान कि किसी भी बात को अगर करना है तो पूरे जी जान लगा के करो. बस ये नहीं, योग वशिष्ठ इसलिए नहीं है कि हम लोग ज्ञान ले बैठे और हिमालय में चले जाए, नहीं, हमको डल नहीं बनना है. इसके जो आदर्श है, स्वयं पुरुषोत्तम श्री राम जी जिनको आज हम जानते हैं, हम उनके जैसा होना चाहते हैं, हम उनका राज्य चाहते हैं. तो उस तरह की पर्सनालिटी बनाने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए ये ज्ञान था. और उसी को हर क्षण में जीवन में टेस्ट करते गए, हर एक क्षण में उसका नॉलेज अप्लाई करते जाते हैं. और मेरी बात मानेंगे तो इसके जैसा सुख और कहीं नहीं आता.
ये हो जाता है कि जितने बार मैं इसके बारे में बोलता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। शायद मेरी टेंडेंसी भी वैसी है, पर वो उसका ज्ञान इतना सुंदर है। जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी करके, वो आएंगी, पर उसमें हम बिल्कुल हिलते नहीं हैं। कुछ नहीं होता, वो विश्वास लेके जाता है। और जैसे जैसी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, ये योग वशिष्ठ ने विश्वास दिया है, गुरुदेव ने विश्वास दिया है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, बस आपकी इच्छा बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और उसके जो टूल्स है, ज्ञान किस तरह से होना चाहिए, ध्यान किस तरह से होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे अस्तित्व के सारे स्तर, ये किस बात पे कैसा कैसा काम किया जाना चाहिए, ये सारा एनर्जी हम जब निकालने शुरू करते हैं ना, तो योग वशिष्ठ में इसके सारे मंत्र दिए हैं। मंत्र मतलब वो संस्कृत वाले मंत्र नहीं, उसके टेक्निक्स दिए हैं। तो जीवन तो पूरा ट्रांसफॉर्म होना ही होना है। और जब ये मैंने खुद अपने साथ देखा, जब मैं लोगों के साथ सेशंस कंडक्ट कर रहा था, उस समय मैंने जब देखा कि कितने कितने समस्या थी, लेकिन लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो गए कि पता नहीं, जिसको आप जो पूरा जीवन में ढल चुका है वो उठ के खड़ा हो गया और एकदम सुंदर से जीवन जगना शुरू कर दिया। ये जब अनुभव देखने लगे ना, तो कहा कि अरे ये तो वास्तव में है। टेस्ट तो ऑलरेडी पास हो चुके, बाकी की जीवन क्या है क्या नहीं पता नहीं, पर ये तो पिछले 3-4 साल में जो कहा गया था, इसमें जो मंत्र दिए थे, जो फॉर्मूले दिए थे, वो इतने अच्छी तरह से टेस्ट हो चुके हैं कि अभी तो कुछ और बाकी टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो केवल बस वो रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है। वो टेस्टिंग उस समय हुआ था और ये बात हो रही है करके। तो आपसे रखूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये योग वशिष्ठ आप जीवन में लेकर आए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कुछ कुछ बातें इसमें हो सकती है कि जो अध्यात्म से रिलेटेड बहुत डिफिकल्ट लग सकती है कभी, पर ठीक है ना, हमें उसके तरफ नहीं जाने की जरूरत है। हम हमारे लिए जीवन, हमारे आज के जीवन में इसको किस तरह से उतार सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, यह इसमें तो जरूर मिल जाएगा ना। नहीं समझेगा अध्यात्म की बातें, नहीं समझेंगे जीवन के मृत्यु के बाद क्या होता है, ये है वो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से छोड़ दीजिए। लेकिन आज का जीवन जीने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो तो काम में आ सकती है ना। तो जितना समझता है उतना ही सही। सोमेश्वर जी ऑलरेडी प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं कि योग वशिष्ठों को सरलता से समझाया जाए, लोगों के जीवन में उतारा जाए। आप ढूंढना शुरू करिए, आपको ऐसे ऐसे रिसोर्सेस आपके सामने यूट्यूब, अलग अलग यूट्यूब चैनल से आपके ही घर पे मिल जाएंगे। खाना बनाते वक्त अगर करना है तो देखिए, खाना खाते वक्त करना है तो देखिए, कपड़े धोते वक्त देखना है, कपड़े सुखाते वक्त करना है, जब चाहिए तब सारी डिटेल्स आपके घर में आपके पास अवेलेबल है। ऐसे मौके मत चूकिएगा, पूरी जी जान लगा दीजिए। और ये इसकी विशेषता पता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जाते हैं। एक बार आपने खींचना शुरू किया तो वो अपने आप से आना शुरू होता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो जैसे जैसे इच्छा होगी वैसे वैसे आएगा, वही जैसे जैसे आएगा इच्छा और बढ़ती जाएगी। एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन आप स्वयं अनुभव करेंगे। आप स्वयं एक चिराग बन जाएंगे, आप स्वयं एक रोशनी का सोर्स बनेंगे कि जो जिसको देख के बाकी लोग भी आपको देख के कहे कि हाँ अरे ये कुछ परिवर्तन लेके आता है। तो चूके मत, साधारण जीवन नहीं जीना है हमको, कुछ विशेष होना है, पुरुषोत्तम होना है, उसके लिए प्रयत्न करें। इससे और ज्यादा तो नहीं कह सकता सोमेश्वर जी, नहीं तो बोलने के लिए तो फिर 100 घंटे तो हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, और कितना बोले। ठीक है, धन्यवाद, जय गुरुदेव। That was such a wonderful thing. यतीन जी के बारे में बात करें ना तो घंटों बात करें तब भी सुनने का मन करता है। और बोले 2-3 मिनट में आपको अनुभव बोलना है तो सारा योग वशिष्ठ का पूरा सार 2-3 मिनट में भी बयान करते। यह ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग उनके जीवन में देखते हैं। उनके हर क्षण में वो योग वशिष्ठ को अपने जीवन में जीते हैं और दूसरों के साथ साझा भी करते हैं। तो यतीन, देयर इज अ गुड न्यूज, टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग ओवर 100 डे ऑफ द सीजन 2। जैसे यतीन जी ने कहा कि पहले हमने कुछ सत्र किए, फिर 100 सेशंस योग वशिष्ठ महावाक्य यज्ञ के रूप में हमने 100 सेशन कंप्लीट किए। एंड राइट नाउ द सीजन 2 व्हिच इज हैपनिंग मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। अभी तो फिलहाल हिंदी एंड इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इवनिंग का जो सत्र होता है अपने इंग्लिश में होता है, मॉर्निंग का सत्र हम लोग हिंदी में लेते हैं। तो इसका 100 डेज टुमारो इज ऑल्सो दिवाली, दीपावली के दिन यह उत्सव कंप्लीट होगा। एंड ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इसमें ऐसा उत्सव मनाए, यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने की बात हो, यतीन का एक्सपीरियंस इसमें शामिल ना किया हो। तो थैंक यू सो मच Yatin, thanks for joining and sharing your experience. Let's move together. That Sangat Chatvam, that teamwork is already there. We are part of one team. Let's build this knowledge to everybody.
Thank you so much. Jai Gurudev. Thank you. Thank you. Jai Gurudev. So that was Yatin, which we are listening to. Our next participant is also ready to share his experience. Over to you, Harshal. Please go ahead. जय गुरुदेव भैया। आज योग वशिष्ठ जो महाग्रंथ है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करने का ये सौभाग्य मिला है, यही बहुत है। पहले मेरा नाम हर्षल नाडकर्णी है और वैसे ही मैं आर्ट ऑफ लिविंग का एक वॉलंटियर भी हूँ। और आई मेडिटेट क्लब, ये जो सोमेश्वर भैया और टीम, हमारी टीम जो उन्होंने क्लब किया है उसका भी एक मेंबर हूँ। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो योग वशिष्ठ जो महाग्रंथ है ये एक नॉलेज सेशन बहुत सारे उसके हैं, लेकिन ये इसको हम एक ज्ञान का एक यज्ञ भी बोल सकते हैं। ये महायज्ञ में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला, यही मेरे लिए बहुत है। हमने पहले जो अपना भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकले हुए ज्ञान मोती है उनके बारे में हमने सुना था, लेकिन योग वशिष्ठ ये जो महाग्रंथ है उसके बारे में पहले कभी सुना नहीं था। लेकिन गुरु कृपा से जो श्री राम भगवान उनके लिए जो महर्षि वशिष्ठ ऋषि उन्होंने जो ज्ञान दिया, ये सुनने का हमें बहुत अच्छा मौका मिला। ये जो योग वशिष्ठ ये जो महाग्रंथ है उसमें जो बातें बताई गई है, तो उन बातों को हम अगर जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन बहुत ही सरल और सहज हो सकता है। ये समझने के लिए आप जरूर हमारा जो YouTube चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे पहले के सारे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये योग वशिष्ठ के सेशन से मुझ में बहुत अच्छा परिवर्तन आया। इससे अपना शरीर, मन और जो चैतन्य शक्ति है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आता है, बदलाव आता है। तो आप सब लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। जय गुरु। Thank you so much, Harshal. Thanks for sharing your experience. Jai Gurudev. So let us continue with our experience sharing. Our next participant have already joined with us, Ramaji. Ramaji, would you like to share your experience of Yoga Vashishta? Please go ahead. Yes. मैं रोमा रॉय हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। मैं जब से इस धारा में जुड़ चुकी हूँ तब से मैं निर्लिप्त हो गई। एक बड़ी बात है, निर्लिप्त मतलब मैं कुछ भी घर में होता है मुझे परेशान नहीं करती है, मैं अच्छे से उसको हैंडल कर लेती हूँ। घर में कुछ भी होता है, पहले तो थोड़ा एज ए हाउसवाइफ और एज ए मदर पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, मैं रिएक्ट कर लेती थी। आजकल मैं रिएक्ट नहीं करती। मैं योग वशिष्ठ से ऐसे सीखा है कि देयर इज ए वर्ल्ड बियॉन्ड आवर सेंस ऑर्गन्स, beyond our sense organs, which can be realized by us, and the human body can, without, there is two parts of our human body, with sense organs and without sense organs. So this when we are in the practical world, we are active in practical world, then all the sense organs are inactive. But when we drop out all the sense organs, that state is called meditation. And this आर्ट ऑफ लिविंग बोल सकते हैं कि जीने की कला मुझे इतना समृद्ध किया है, इतना एम्पावर्ड किया है, इतना मैं भर चुकी हूँ
कि मुझे अब कुछ किसी से कोई प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो, या फिजिकल प्रॉब्लम हो, या मेंटल प्रॉब्लम हो, या घर के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, या कोई भी एंजाइटी हो। मैं पहले बहुत एंसास हो जाती थी, बहुत ओरिड हो जाती थी। कुछ भी कहीं जाने के पहले कैसे मैं इंतजाम करूं, कैसे करूं, ये सब मुझे परेशान करती थी। लेकिन मुझे आजकल कुछ परेशान नहीं करते। मैं बहुत अधिकतर स्टेबल हो गई, बस यही मेरे फीलिंग है। धन्यवाद रमा जी। अभी हम लोग रमा जी को सुन रहे थे। परिस्थितियां वही होती है, लेकिन उसको हैंडल करने का जो तरीका अपना जीवन में होता है, उसको रिस्पॉन्ड करने का अपना तरीका होता है, वह यहाँ पे बदलाव हम लोग महसूस करते हैं। और यह बदलाव आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज से भी होता है, और यह बदलाव योग वशिष्ठ के नॉलेज से भी होता है। यही रमा जी अपने साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चलिए फिर नेक्स्ट अपने जो पार्टिसिपेंट है वो भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। शलाकाताई, शलाकाताई, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज गो अहेड। मैं शलाका चौथाई, मैं पुणे में रहती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मास्टर एमए किया है मैंने मराठी में। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे घर में 5 लोग हैं। मेरे जीवन में जब योग वशिष्ठ नहीं था, तब मैं थोड़े थोड़े से स्ट्रेस से, टेंशन से इतनी परेशान होती थी, और मेरा रिएक्टिव नेचर बढ़ गया था। जब मैंने योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया तो एक एक बातें, एक एक ज्ञान, मतलब इतना ज्ञान का सागर मेरे लिए खुला हुआ सिर्फ योग वशिष्ठ से। मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गई। और उस कहाँ से मुझे मैसेज आया था अभी आई डोंट रिमेम्बर, और मैं योग वशिष्ठ से जुड़ गई, और मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। इतना मुझे ज्ञान मिला कि मन की चंचलता क्या होती है, चित्ता का क्या होता है, जो सफरिंग्स होती है वो सिर्फ मन की वजह से होती है, ये मुझे समझ में आ गया। संकल्प विकल्प के बारे में मैंने पढ़ा, डिस्कशन किया, शम संतोष विचार संत संगति, ये सब चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मैं पहले बहुत, मतलब मैंने आपको बोला कि मैं रिएक्ट होती थी घर में, लेकिन ये सब दुनिया, ये सब रिलेटिव्स, ये सब स्थितियां ही भ्रम ही है। तो मुझे बड़ा जोक लगता है, अभी घर में कोई भी चीज हो गई तो मुझे ये जोक ही लगता है। मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और मैं विदाउट रीजन खुश रहना सीख गई हूँ। इतनी बड़ी बात है ना, ये शब्द मुझे कम पड़ेंगे, मतलब ये शब्द में मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच योग वशिष्ठ। जितने लोगों ने मेरे जीवन में योग वशिष्ठ लाने में मदद की, उन सब का मैं पूरी जीवन भर आभारी रहूंगी। और सोमेश्वर जी, यतिन जी, आपको तो मैं मतलब थैंक्स बोल के ये नहीं कर सकता। आपके ऋण में रहने के लिए मैं पसंद करूंगी, आपकी ऋणी रहने में ही पसंद करूंगी। थैंक्स बहुत छोटी चीज है, आपको बोल नहीं सकती है। बस, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शलाकाताई, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल expression. And yes, all the appreciation reach out to only one जो आपको फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। He is the source, he is the one who makes us do all these things. All that goes to the master. Thank you so much for that. Words. अपने अगले पार्टिसिपेंट भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, वनीता जी। वनीता जी, प्लीज गो अहेड, शेयर योर एक्सपीरियंस। जय गुरुदेव। मैं वनिता देशपांडे, पुणे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। मेरे घर में एक पति है, सीबीआई बैंक में वो बीआरएस ले लिए। मुझे एक लड़की है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और सर्विस पे भी है। मैंने मई मंथ में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर दिया और उससे मेरा बहुत ही प्रोग्रेस हो गया है। जीवन का नजरिया पर अलग हो गया। बाद में 2 महीने के बाद एडवांस कोर्स भी मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप। जय गुरुदेव। बहुत ही फटाफट प्रोग्रेस मेरा हो गया है और जीवन को देखने का ढंग ही बदल गया है मेरा। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, अभी धीरे धीरे मैं कम हो रही हूँ। और मैं अभी ट्यूशन देती तो बच्चों के भी बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, उनको टीचिंग का भी अलग नजरा मेरा बन गया है। और बाद में योग वशिष्ठ जानकर भी, यार पूरा से मेरा रीडिंग नहीं हुआ है काम की वजह से, लेकिन उससे मेरा विजन ही चेंज हो गया।
ऐसा लग रहा है कि मेरा हर रोज नया जन्म हो रहा है, नई नई बातें मुझे आती है। मैं जय गुरुदेव का, सोमेश्वर भैया का और संगीता जी का बहुत 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 धन्यवाद बोलती हूँ, और उससे मैं जिंदगी भर ऋण में रहेंगी। मेरा बहुत ही चेंज हो गया है, मैं शब्द में नहीं बोल सकती। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर काइंड वर्ड्स। अपने साथ अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट भी जुड़ चुके हैं। रोहिणी ताई, तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर करू शकता प्लीज? खूप आवडतं योग वैशिष्ट्य, म्हणजे इतकं की ती वेळ मी चुकवत नाही, काहीतरी करून धडपड करून मी ते बघते. आणि सोमेश्वरजी तुमचा शब्दानी शब्द मी मनात साठवून ठेवते, इतकं की मला शब्द नाही सुचत. म्हणजे सेशन झालं की मी निशब्द होते अगदी. प्रत्येक शब्दानी शब्द मनात साठवून ठेवते, आठवून ठेवते, आणि काही करताना पण त्याचं हे करते, आठवण करून घेते मी स्वतःला. आणि खूप छान वाटतं, शांत वाटतं. जेवढी डिस्टर्ब झालेली होते ना, त्या मानाने खूप मन शांत झालंय. मला फक्त 3 तास 4 तास झोप लागायची, पण ती वाढलेली नाही, पण खूप शांत लागते. हे काय कमी झालं का? आणि फारच छान तुमची वाणी, रसाळ वाणी, आणि काय म्हणायचं ते ओघवती भाषा, आणि सोपं करून सांगणं. संगीता, तुझं पण अगदी मनापासून कौतुक. इतकं सिम्प्लिफाय करतेस लहान असून, खूप आनंद होतो मनाला. म्हणजे ही वेळ मला सबन दिवसात छान वाटतं, प्रसन्न वाटतं. किती समजत असेल मला ते माहित नाही, खूप हे मोठं प्रकरण आहे, पण मी समजून घ्यायचा मनापासून प्रयत्न करते. खूप छान. हा वेळ मला अतिशय छान जातो आणि मनाला शांत वाटतं. जे तुमचा अनुभव आहे रोहिणी ताई, ते शांत वाटणं हे कितीतरी मोठ्या ज्ञानापेक्षा मोठी गोष्ट. त्याचा उपयोग शांत होण्यासाठीच. अगदी प्रश्नच नाही. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही तुमचा अनुभव शेअर केल्याबद्दल. असेच तुमचे आशीर्वाद सर्वांवर राहू द्या आणि असेच सत्र आपले आपण पुढे चालू ठेवूया. जय गुरुदेव. अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट बीना जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं. बीना जी, काइंडली गो अहेड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. ओवर टू यू. जय गुरुदेव. मेरा नाम बीना करोल है और मैं बैंगलोर से हूँ. बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस आर्ट ऑफ लिविंग से, सबसे पहले तो कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से गुरुदेव से जुड़ी हूँ. सेकंड थिंग कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना और साधना के साथ रहना और उसके बाद नॉलेज के अंदर रहना, वो तो और भी बड़ी बात है. तो मेरी लाइफ में मैंने 1999 से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद है तो मैं आगे बढ़ती रही. और धीरे धीरे मुझे क्या पता चला कि ज्ञान का अथाह सागर है. मुझे तो कुछ भी पता नहीं था. आई वॉज जस्ट लीडिंग माई लाइफ जस्ट लाइक दैट, ऐसे कैजुअली. अगर गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लालच आ रहा है तो आ रहा है. I was not much aware, और उसको सुधारने की कभी कोशिश भी नहीं करी. This is a style pattern way of leading the life. But no, much more beyond that one. Or I'm so it's like very fortunate that I could retain the things. कभी कभी होता है कि हमें ज्ञान ही समझ में नहीं आता, बाउंस बैक भी हो जाता है. सो वो होता है साधना से. और मैं जैसे जैसे साधना में गहरी होती गई तो मुझे लगा कि ये अंदर उतर रहा है ये ज्ञान. और लेकिन एक थर्स्ट थी, एक कहीं ना कहीं एक प्यास थी कि मुझे और क्या है इसके बाद, है ना. तो जैसे ही मैं सोमेश्वर जी का एक मैसेज पढ़ा
और मुझे योग वशिष्ठ के बारे में ना मैंने सुना बहुत था, लेकिन कभी ना उसके बारे में मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला। सुना भी है लेकिन उतना गहराई में नहीं गई। तो आई जस्ट जम्प्ड इनटू दैट। और मैंने मिड सेशन में मैंने शायद ज्वाइन किया था गुरु सोमेश्वर जी के साथ, लेकिन कहीं से भी धागा पकड़ो वही स्टार्टिंग पॉइंट है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस योग वशिष्ठा। और मैं जैसे जब भी सुनती हूँ ना, एक एक सेशन को जब सुनती, जो रामा का कॉन्वर्सेशन है कि वो जिज्ञासु की तरह जिस तरह से पूछते हैं और जिस तरह से सवाल जवाब होते हैं, वो रियली मेरे अंदर भी कुछ ओपन अप कर रहा था। क्योंकि ना मुझे लगा कि ये तो, अरे ये तो मैं जानते हैं, इससे ये भी तो है दुनिया, ये भी तो और आगे, मतलब इट इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ इफ यू दोज हु आर want to gain the knowledge in spirituality more, they want to go in progress, definitely they should come and listen this योग वशिष्ठा। otherwise बहुत सारी बातें हैं जो कि इनकम्प्लीट रह जाती हैं। एक स्टेज आती है कि जहाँ स्टैग्नेशन आ जाता है। योग वशिष्ठा has completed my journey, so I'm from bottom of my heart I'm really thankful to सोमेश्वर जी और बाकी सारे जितने लोग, जो संगीता जी है और भी कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इससे, और उसकी वजह से ही हम ये सुन पा रहे हैं। और हमारा जो सेशन में एंड में सोमेश्वर जी ने इतना सुंदर से उसमें पुटअप किया हुआ है कि हम डिस्कशन करते तो और पढ़ते हमारी खुलती जाती है। तो ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेशंस एंड आई थिंक आई लव टू शेयर ऑल दीज मैसेजेस। जितना भी मैं है ना हर बार भेजती हूँ और लोगों को बोलती भी हूँ कि योग वशिष्ठा में आके देखो तो सही, क्योंकि लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग and it's really very deep meaning behind each and every incident or event whatever has been told in this Yoga Vashishta. So again I would like to give thanks to Someshwar ji and to the whole team who is organizing so nicely, and my lots of blessings to all of you. Thanks a lot. Jai Gurudev. Jai Gurudev Binaji, and you are also part of that team. You are not away from the team. You are. हाँ, आप तो मेरी फैमिली हो गया है। मतलब मुझे तो एक ही लगता है, अभी तो मुझे आप लोगों से जब भी मुझे मुलाकात नहीं होती तो मुझे कभी कभी काम की वजह से ना तो मैं नहीं अटेंड कर पाती, तो अंदर से लगता है, नॉक करता है, आई मस्ट ज्वाइन, आई मस्ट गो, है ना, अंदर से आवाज आती। सो ग्रेट थिंग विच आर हैपनिंग। और हम साधारण से लोग हैं, ऐसे ही ज्ञान बह गया है ना। ऑनेस्टली बताए तो बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं है, ऊपर से आता है और बह जाते हैं बस उसमें। दैट इज द ब्यूटी। योग वशिष्ठ में आते तो उससे एक ही बात होती है कि जो गुरु ने हमें दिया हुआ है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड और ज्यादा बढ़ता है कि मास्टर हैज ऑलरेडी गिवन ऑल दिस थिंग। अभी हम लोग उसको सब डिस्कवर कर रहे हैं, कह रहे हाँ गुरुदेव ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। होम हाई दैट इज हम डिजर्व भी नहीं करते कई बार तो कि अरे हम क्या इतना नॉलेज को समझ पाएंगे, लेकिन हो रहा है। और जब भी स्पेशली आप जो मेडिटेशन कराते हैं ना, इट इज सो डीप, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब हम तो हमें लगता है कि जैसे गुरुदेव सामने बैठे वो करवा रहे हैं, तो मुझे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर तक वो टच कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और ये कोई ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है, माय ट्रू फीलिंग्स, जो कि इट कम्स आउट जस्ट स्पॉन्टेनियसली। थैंक यू once again, thank you so much. Thanks a lot बीना जी। गुरुदेव का प्रेजेंस वहाँ पे होता है तभी ये सारी चीजें होती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। There is nothing to talk more about it. Thank you so much for sharing your experience. जय गुरुदेव। Next participant भोसले सर भी अपने सब कर चुके हैं। भोसले सर, please share your experience. Over to you. जय गुरुदेव सर। मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगशी संबंधित आलो, ते माझी मुलगी हॅपीनेस टीचर आहे प्रज्ञा भोसले, तिनं मला म्हणजे आर्ट ऑफ लिव्हिंगची आणलेले आहे। तिथून मी जवळजवळ 4-5 वर्ष झालं रोज माझी मी साधना करतो। आणि आता हे काय झालं की हे तुमचे योग वैशिष्ट्य वगैरे चालू झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की रोज संध्याकाळी 7 ते 9 हे मी बाकीचं सगळं सोडून मी तुमचं ऐकायचं म्हणजे आटोकाट प्रयत्न करतो। आणि शक्यतो मी
म्हणजे ऐकतो मी, माझं हे करत नाही, म्हणजे काय व्हिडिओ वगैरे ऑन करत नाही माझा, पण मी ऐकत असतो सगळं. आणि ते मला माझा सांगायचा मुद्दा हा एवढाच आहे की सेल्फ रिअलायझेशन आहे की अरे ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या आयुष्यातून घडून गेलेल्या आहेत, पण त्याचं आपल्याला रिअलायझेशन झालं नाही की हे जे काही ज्ञान आहे हे ज्या वेळेला समोरची अधिकारी व्यक्ती ज्या वेळेला आपल्याला हे सांगते त्यावेळेला आपल्याला हे कळतं. आणि मग आपल्या लाईफ मध्ये जे काही आपल्याला वाईट गोष्टी वगैरे वाटतात किंवा ज्या गोष्टीमुळे आपल्याला दुःख होण्याची शक्यता असते किंवा आपल्याला जीवनाविषयी काही वेळेला म्हणजे बरोबर चांगली वाटत नाही गोष्टी, तर ह्या सगळ्या गोष्टीवर आपण म्हणजे इझिली मात करू शकतो. हे मला एवढं मात्र नक्की रिअलाइज झालेलं आहे. आणि आता नाहीतरी 67 वर्षानंतर मी आता काय करणार आहे, काहीच नाही, परंतु ह्या गोष्टीमुळे मला म्हणजे परत शिकावंसं वाटायला लागलं. म्हणजे लहानपणी आपण कसं शाळेत वगैरे जात होतो, नवीन कोर्सेस वगैरे शिकत होतो, मग त्या पद्धतीने आता हे झालेलं की बाबा हे लाईफ मध्ये काहीतरी आहे आणि ते आपण समजावून घेतलं पाहिजे आणि बाकीच्या लोकांना सुद्धा समजावायचा प्रयत्न करतो. म्हणून मी पुस्तकं पण लोकांना काय काय दिलेली. तर हे माझं स्वतःचा अनुभव आहे की आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे हे गुरुजींचं माझ्यावर मोठं हे काय की एक वेळ चाललेली म्हणते, मराठीत एक म्हणलं जातं काय की वेळ ही फार महत्वाची असते. कालाय तस्मै नवा म्हणतो का नाही, की हीच वेळ आहे. जसं अर्जुनाला सांगितलं की बाबा अर्जुनाने करणं, दोघंही हुशारच होते, दोघंही म्हणजे युद्ध शास्त्र निपुण होते, परंतु ज्या वेळेला अर्जुनाची वेळ आली त्यावेळेला कर्णाचं संपलं. आता आमची ही वेळ आलेली की हे सगळं ज्ञान आहे हे आम्हाला मिळायला लागले. त्यामुळे आमचं काय होतं की डे टू डे जे आमचे हे आहेत म्हणजे जीवनाचं जे काय सार राहिलेले वगैरे त्यात आम्हाला जरा म्हणजे चांगलं वाटायला लागलं. चांगलं म्हणजे बाकीच्या जे गोष्टीत माणूस अडकत जातो त्या गोष्टीतून आम्ही म्हणजे मुक्त झाल्याच वाटायला लागले मला. आणि मला तसं फायनान्शियली काय टेन्शन नाही. माझ्या दोन्ही मुलांचे लग्न वगैरे झालेले, प्रॉपर्टी वगैरे व्यवस्थित आहे, पेन्शन भरपूर मिळते. पण एवढं असून सुद्धा माणूस उद्विग्न होतो. ती उद्विग्नता घालवण्याचं हे एक मोठं कार्य म्हणजे मी ह्या अटेंड केल्यापासून माझं म्हणजे झालेलं आहे. ह्याला कारणीभूत तुम्ही सगळे लोक आहात. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की तुम्ही सगळ्या लोकांचं काहीतरी ऐकल्याशिवाय मला काय चैन पडत नाही. आर्ट ऑफ लिव्हिंगची जे काही संबंधित लोक आहेत मला एकदम म्हणजे चांगलं वाटतंय. आणि मी हा पण प्रयत्न करतो की माझे जे काही मित्रमंडळी आहेत, नातेवाईक वगैरे, त्या सर्वांना मी आर्ट ऑफ लिव्हिंग विषयी आणि हे जे काही आपले कार्यक्रम वगैरे चालू असतात त्याविषयी मी त्यांना माहिती देत असतो आणि त्यांना म्हणजे इन्सिस्ट करत असतो की बाबा तुम्ही निदान ऐका, फॉलो करा नाही तर करू नका, पण तुमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक शरीर प्रकृतीसाठी तर तुम्ही ही काही जर साधना केली ना तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जायची आवश्यकता नाही, याची मात्र मी तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकतो. एवढं बोलून मी माझं थोडक्यात संभाषण संपवतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव भोसले सर, खूप छान तुम्ही तुमचं एक्सपीरियंस शेअरिंग केला इथे. धन्यवाद. अपने अगले पार्टिसिपेंट भी अपने साथ जुड़ चुके हैं. करणकर जी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? प्लीज गो अहेड. जय गुरुदेव. माझं नाव विद्याधर कारंजकर, राहणार पुणे. मी आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेला गेल्या 20 वर्षापासून जॉईन आहे. 20 वर्षापूर्वी मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स केलेला आहे. गुरुदेव नेहमी सांगतात की प्रत्येक साधकाने योग वशिष्ठ हा ग्रंथ वाचला पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यातील तत्वज्ञान आपल्या जीवनात आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असं मी गुरुजींना ऐकलं होतं. 4-5 वर्षापूर्वी पुण्यातील यतीन जोशी सर हे योग वशिष्ठावर खूप सुंदर बोलतात गेले बरेच वर्ष. त्यांचं एक सेशन होतं 15-20 किलोमीटर अंतरावर. तर ते मेसेज वाचला, मला आवडला. अरे एवढं सुंदर सेशन आहे, गुरुजींनी सांगितलं योग वशिष्ठ वाचलं पाहिजे. गेलो, तो सेशन अटेंड केलं. तर 1 तासाभरात त्यांनी पूर्ण योग वशिष्ठ म्हणजे काय आहे हे पूर्ण त्यांनी ते खूप तासनतास योग वशिष्ठ बोलतात. त्यांनी तासाभरात संपूर्ण योग वशिष्ठाचं सार काय आहे, प्रत्येकाने का वाचलं पाहिजे सांगितलं होतं. ते मला खूप आवडलं. तुम्ही ते योग वशिष्ठ पुस्तक सुमनताई महादेवकरांचं विकत आणलं आणि अभ्यास वाचायला सुरुवात केली. आणि त्या डेली ग्रुप्सना मी पुण्यामध्ये आनंद आश्रममध्ये त्यावेळेस घ्यायचो रोज सकाळी. तर मग आम्ही डेली ग्रुप नंतर रोज वाचन करायचो. पण तेव्हा लक्षात आलं की अरे वाचलं तरी तो खूप मोठा ग्रंथ आहे. हा योग वशिष्ठ 32,000 श्लोकांचा महाग्रंथ आहे. एवढा मोठा ग्रंथ वाचायचा आणि त्यातून तत्वज्ञान हे घेऊन आपल्या जीवनात हे करायचं, तसं एवढं सोपं काम नाहीये. तर मग मी त्यावेळेस वाचन आम्ही स्वतः मग लॉकडाऊन नंतर सुरू झालं. लॉकडाऊनच्या काळात मी त्या नोट्स काढल्या. मला पहिल्यापासून सवयी नोट्स काढायच्या की ह्यामध्ये जे महत्वाचे मुद्दे आहेत, महत्वाचा उपदेश आहे
ते मी नोट्स काढायला सुरुवात केली. नोट्स काढल्या, मग ते मी टाईप करून घेतल्या. ते म्हटलं मग नंतर लक्षात आलं आपण नोट्स काढल्या तर आपल्याला एक छोटंसं पुस्तक तयार करूया, कथा सार या संपूर्ण याचा एक सार. तर एवढ्यात खूप कथा, एवढ्या कथा वगैरे आहेत की बरेच जण काय करतात, पुस्तक वाचायला सुरुवात करतात आणि एक दोन प्रकरण वाचून झाल्यानंतर सोडून देतात. असा माझ्या बऱ्याच लोकांचा अनुभव आहे. कारण मी हे पुस्तक सुमनताईंचं जवळजवळ 100 लोकांना मी घरी नेऊन, आमचे ग्रुप पुण्यामध्ये योग वशिष्ठ रीडर्स ग्रुप म्हणून आहे, त्या 200-250 लोक आहेत. मी खूप लोकांना ते पुस्तक घरपोच घेऊन दिलंय. बऱ्याच लोकांना अनुभव की ते वाचतो आम्ही पण पुढे जातच नाही, म्हणजे वाचून पूर्ण ग्रंथ होतच नाही, 6-6 महिन्यात सुद्धा होत नाही. तुम्ही म्हटलं आपण याचं कथासार नावाचं एक छोटंसं पुस्तक तयार करूया. ते नोट्स काढल्याचं मी टाईप करून घेतल्या. परत मग ते रिव्हिजन घेतली परत, काय बरोबर झाले का. तर त्यातलं तसं तत्वज्ञान सामान्य माणसाला पचायला जड आहे, समजायला जड आहे. मग त्यातलं भाषाही खूप जुनी आहे, त्यामुळे मी ते त्यातलं सर्वसामान्यांना जास्त त्रास हे होणार नाही, सहज वाचायची आवड होईल आणि वाचून होईल. असं कमी करत शॉर्ट करत करत असं हे योग वशिष्ठ कथासार हे असं पुस्तक मी गुरुपौर्णिमेला मागच्या 3 महिन्यापूर्वी प्रकाशित केलेलं आहे. गुरुदेवांचा पहिल्या पानावर फोटो टाकलेला आहे. आणि हे ऍक्च्युली पुस्तक तयार करण्याची पात्रता माझ्यात खरंच नाहीये, पण गुरुदेवांच्या कृपेमुळेच हे झालेलं आहे. हे मला इथे नमूद केलंच पाहिजे. कारण मी कधी पुस्तक लिहिलेलं नाही, मी संकलक आहे. या पुस्तक लेखक नाही, संकलक आहे. त्यातून नोट्स काढून मी हे तयार केलेलं आहे. आणि ह्या पुस्तकाच्या इथे 100 रुपयाचं देणगी मूल्य आहे. आणि इथे मी खाली देणगी मूल्याच्या खाली लिहिलंय की या पुस्तकाच्या विक्रीतून येणारी पूर्ण रक्कम ही आपल्या श्री श्री विद्या मंदिर या गरीब मुलांच्या शिक्षण देण्याच्या उपक्रमाला देण्यात येईल. त्यामुळे जी काय यातून विक्रीतून रक्कम येईल, नफा तर नाही, पूर्ण रक्कम विक्री रक्कम ही आपल्या श्री श्री विद्या मंदिर या संस्थेच्या, त्यामुळे लोकांना ज्ञान मिळेलच आणि यातून येणारे पैसे एका चांगल्या उपक्रमाला वापरले जातील. ही नोट्स लिहिल्यामुळे असं झालेलं आहे की बऱ्याच लोकांनी अरे एवढे चांगल्या कामात तुम्ही पैसे करताय, ठीक आहे, आम्हाला 10 पुस्तकं द्या, आम्हाला वर्षश्राद्ध आहे, वर्षश्राद्धाला प्रेझेंट देण्यासाठी आम्हाला 50 पुस्तकं द्या, अशी खूप लोकांनी हे केली. आणि ही अजूनही पुस्तकं बाहेर दुकानात लॉकडाऊन मध्ये दिलेली नाहीये. माझे तणावमुक्त जीवनचे 25 ग्रुप्स आहेत. रोज सकाळी आणि संध्याकाळी योगा शिक्षण, दुपारी योग निद्रा मी घेत असतो गेले 1.5 वर्षापासून. दर रविवारी आमचं आध्यात्मिक व्याख्यान पण असतो रात्री 8 ते 9. तर ह्या आमच्या ग्रुपमधूनच लोकांनी हे 800 पुस्तकं फक्त 3 महिन्यात ऑनलाईन गुगल पेने 100 रुपये पाठवतात. मी त्यांना पोस्टाने ते पुस्तक घरपोच पाठवतो. आणि पुस्तक पाठवायचे पैसे घेत नाही की त्यामध्येच पोस्टेज कुरिअर जे असेल ते त्यांना हे घरपोच पुस्तक पोहोचवणे हे महत्वाचं आहे. पैसे एवढं मोठं तत्वज्ञान प्रत्येकापर्यंत पोहोचावं हे ह्या मागचा हेतू आहे. खूप लोकांना आवडलं पण आहे. आता मी अजूनही काही लोकांचं म्हणणं आहे की सामान्य माणसांना हे अजूनही थोडं एवढं छोटं पुस्तक सुद्धा वाचायला जड असते. अक्षर मी अक्षर मोठे केलेलं आहे बऱ्यापैकी. तर त्याचा संक्षिप्त योग वशिष्ठ असं मी आता तयार करतोय. त्याचे 2000 कॉपीज काढतोय. यातलं थोडंसं म्हणजे अननेसेसरी भाग कमी करून थोडं छोटं करतोय आणि जरा कागद चांगला आणि थोडं हे करून 2000 कॉपीज काढून ते संपूर्ण जास्तीत लोकांपर्यंत पोहोचवायचा माझा एक संकल्प आहे. गुरुदेवांचं आशीर्वाद आहेच. स्वतः मी हे ते गोष्ट गेले एवढे हे वाचन केलं, नोट्स काढल्या, कथासार परत मी स्वतः प्रूफ रिडिंग करणं हे करणं सगळं मी स्वतःच केलेलं आहे. बाहेर हे न करता की स्वतः मी प्रूफ रिडिंग करणे, कव्हर पेज, बॅक पेज, हे सगळं मी गुरुदेवांनीच मला दिले. ह्या कथाचा हा गोष्ट ग्रंथ काय आहे ते तुम्ही रामाचा फोटो टाकून हे केलेला आहे. याच्यामध्ये सुरुवात येऊन योगशिष्ट मधील मूर्ती, ज्ञान मूर्ती यातले महत्वाचे जे पॉइंट्स आहेत, श्रीरामाचा जो उपदेश आहे तो त्यात दिलेला आहे. आपल्या सामान्य माणसाला काय उपयोग आहे त्याचा, नंतर श्रीरामाला उपदेश थोडक्यात हे केलेला आहे. वशिष्ठ श्रीरामाला वशिष्ठ मुनीचा उपदेश तो पण ह्यात सुरुवात थोडक्यात दिलाय. हा सगळा उपदेशच आहे पण त्यातले ठळक मुद्दे घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ह्याच्यामुळे जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलते. गोष्टीमुळे आपल्याला म्हणजे सुख दुःख येतात. त्यात खूप काही इतकं सुंदर तत्वज्ञान आहे की ते हा महान अथांग सागर आहे. त्यामुळे त्यातलं आपल्याला जेवढं आपल्या बुद्धीनुसार जेवढे घेतात तेवढंच आपण घेऊ शकतो. त्यात त्यांनी सांगितलं की संपूर्ण ह्या जगामध्ये सर्व काही सुरळीत सुरळीत होईल असं होणारच नाही. त्यात सुख दुःख चांगलं वाईट सगळं होणारच आहे. त्यातूनही आपल्याला मार्ग काढून आपल्याला पुढे हे करायचं असे खूप सुंदर आहे. त्यामुळे मला आता ताण तणाव येणं किंवा हे करणं हे अजिबात खूप कमी झालेलं आहे. येतच नाही म्हटलं तरी चालेल, रोजची साधना बाकी आहे. पण त्यातलं नॉलेज आपण
सगळं नाही पण योग्य वेळेस आपल्याला हे एकदा वाचून उपयोग नाही, सारखं सारखं वाचलं पाहिजे. म्हणून माझं की एवढा मोठा ग्रंथ सारखं वाचणं शक्य नाही. त्यासाठी हे छोटं पुस्तक वाचलं तर काय होईल की लोकांना, मी स्वतःसाठी, लोकांसाठी नाही, मी स्वतःसाठी, त्यामुळे परत परत वाचतो. त्यामुळे आपल्या परत परत त्यातले एक एक मुद्दे आठवतात आणि ते आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये ते वापरले जातात. हा माझा अनुभव आहे खूप. आता त्यामुळे नैराश्य येणं, बऱ्याचशा जीवनाबद्दल आपल्याला काय काय हे होतं ते अजिबात येत नाही. की यातलं एवढं श्रीराम हा एवढं वैराग्य आलं होतं, नैराश्य आलं होतं जीवनाबद्दल, आणि तेव्हा वशिष्ठ मुनींनी श्रीरामाला उपदेश केला आणि त्याच रामाचा पुरुषोत्तम राम झाला. तर एवढं हे जे ज्ञान आहे हे महत्वाचं आहे. तर ते आपल्याला तर नक्कीच आपला उद्धार नक्कीच होऊ शकतो. ह्याच्या जर आपण मार्गदर्शनाप्रमाणे वागलो, त्याचं आपण आचरण केलं तर तो प्रयत्न चालू आहे आणि खूप फायदा झालाय मला. तर कोणाला पुस्तक हवा असेल तर मला गुगल पे केलं तर आम्ही पोस्टाने घरी पाठवतो. माझा नंबर मी सांगतो वाटल्यास रेकॉर्ड होत असेल तर. माझा 9822186400 विद्याधर कारंजकर. याच्यावर मला फोन करा, तुम्हाला पुस्तक घरपोच पाठवलं जाईल. गुगल पे पैसे पाठवले आणि हे पैसे तुमचे चांगले कामाला जाणार आहेत हे सांगितले. तरी जास्तीत लोकांना मी हे पोहोचवण्यासाठी मी आता नाशिकला मराठी साहित्य संमेलन आहे, तिथे माझं हे करायचं विचार आहे वगैरे, आणि जास्तीत लोकांना पोहोचवणे, त्यातून पैसे कमवणे आहे नाही की खूप एवढं सुंदर ज्ञान आहे. तर बऱ्याच लोकांना योगशिष्ट हा ग्रंथच माहित नसतो. रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी, गीता माहिती, हा ग्रंथ खूप लोकांना माहित नाही. त्यामुळे जास्तीत लोकांना हे ज्ञान पोहोचवायचं हे गुरुदेवांचं काम आहे. ते आपण सगळ्यांनी करूयात. जय गुरुदेव. नर करे सो करणी, जो नर का नारायण हो जाए, याचं सुंदर उदाहरण करंजकर, विद्याधर करंजच्या समोर प्रस्तुत झालेला है. बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया है. योग वशिष्ठ का सार का कथा सार के ऊपर इन्होंने बुक भी लिखा हुआ है. तो किस तरह से देखो, हम लोग सब लोग एक सामान्य व्यक्ति भी किस तरह से वह अपने प्रयत्नों से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, इसका बहुत बड़ा सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे करंजकर ने अपने सामने प्रस्तुत किया है. आपने अपना अनुभव शेयर किया करंजकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपका जो संकल्प है योग वशिष्ठ का ज्ञान काफी सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जरूर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.